گا میں ابھی بلا توقف ابھی آ جائیں جی KFCM صاحب آ جائیں. صبر تو کرے نیچے وہ کریم تو اتارے گا. نیچے سے بھی یہ اٹھانا KMCF سمیت سارے جتنے بھی قادیانی ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ آپ لوگ جن کے ہاتھوں بیوقوف بنے ہوئے ہیں نا، آپ وہ اندر کنڈیاں لگا کے بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں بیٹھ کے، ان کے اثر میں آپ آئے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے جا کے ان سے پوچھ لی کہ بھائی فلاں فلاں بندوں کے پاس جا کے اگر ہم بڑک مار دیں تو کیا آپ ان سے بات کر لیں گے؟ لیں پھر دیکھ لینا اپنا حال بھی اور اپنے ان شیروں کا حال بھی دیکھ لینا. اسی موت کے شعر. یہ وہی نہ جس نے جناب لگا کے ویڈیو اور جگہ جگہ پہ اور بیٹھا ادھر ہی تو ملنگوں کو سمجھا رہا تھا. لیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے، لے جائے مولوی کے پاس، دنیا کا کوئی مولوی یہ چیلنج ایکسپٹ کر دے، میرا نام بدل دینا یہ کر. اور وہ کہہ رہا ہے اس کی ریکارڈنگ کر لیں، ریکارڈنگ کر گئے تو یہ چیلنج جی یہ چیلنج میں نے ایکسپٹ کر لیا، اس کو ٹائم طے کرے اور جناب علی بات کرے مجھ سے. وہ جی جو بھی جاتا تھا یہ اگری نہیں ہوتا تھا، اس کو ذلیل کر کر کے، اس کو بشرم کر کر کے لوگوں نے منایا کہ یار آپ نے چیلنج کیا، اس بندے نے ایکسپٹ کر لیا. اب یہ کیا عذر ہے کہ بھائی اس بندے سے نہیں کرنی تو اس سے نہیں کرنی؟ یہ کوئی شرط رکھی ہوئی تھی؟ اگر آپ اپنے چیلنج میں ٹھیک ہے اور آپ کا چیلنج ایسا ہے جو توڑا نہیں جا سکتا تو جو مرضی بندہ سامنے آ جائے آپ کریں بات. اس رات لا کے منایا اور جب بات ہونی شروع ہوئی اپنے چیلنج سے ہی مکر گیا، کہتا نہیں میں اب اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں. یہ حال ہے تمہارے ان جناب علی فلاسفروں کا. 1.5 گھنٹہ وہ ترلے لیتا رہا اس بات پہ کہ نہیں میں اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں. آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی، اصل میں یہ نہیں، یہ تھی بات، یہ تھی بات. یہ حال ہے تمہارے مربی. جی ٹائیگر سے چلے گجر بادشاہ ہے. بادشاہ آپ نے کوئی کرنی ہے بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو بہت کم آتا ہوں، ٹھیک ہے. میں پتہ نہیں، میں صرف تھوڑا سا ایک میسج دینا ہے کہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کی ہو رہی تھی کہ میں تو ہوتا تو میں واضح طور پر ایسے کہہ دیتا. تو اصل میں سوشل میڈیا استعمال کرتے کرتے اور ٹک ٹاک پر رہتے رہتے بندوں کا مزاج سخت ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، احمدی بھی بعض وقت حد سے تجاوز کر دیتے ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی ایسے ہی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ایک نمونہ پیش کر سکیں. اگر میں یہی خیالات آپ لے لوں جو آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کی بات مان لوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس سے پھر ہم لوگوں کا دل نرم نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں اپنی انسلٹ بھی نہیں سمجھ چاہیے کہ آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے، میں کوئی بات کر رہا ہوں اچھی اور آپ سمجھ میں میری انسلٹ ہو رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ جہاں کہیں گے نا کہ میں غلط ہوں وہاں پہ میں غلطی مان لوں گا، میرے اس میں میری انسلٹ نہیں ہوگی، کیونکہ میری تو انتب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے گجر بادشاہ جیسے نا، دیکھیں ہم آپ کو بات بتاتے ہیں، آپ تھوڑا سا لیٹ آیا. ہماری بات ہو رہی تھی مسلمان کی تعریف پہ. میں نے مسلمان کی تعریف کی، میں سرکاری مسلمان ہوں. میں نے کہا جو اہل سنت و جماعت کے عقائد مانتا، 6 نظریے رکھے. کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتا ہو، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہو، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہو، 5واں مدعی نبوت نہ، اور 6 ہے مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہو. اس زمرے میں ہم قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں. آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ تو ہمیں پتہ ہے آپ تو ہمیں کافر سمجھتے ہیں جواب میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حسین صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں یہ ہے، میں مرزا صاحب کو مرزا صاحب سمجھتا ہوں، نہ ان کو امام مہدی سمجھتا ہوں، نہ ان کو مسیح موعود سمجھتا ہوں. ہم نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے؟ قائد تو سامنے رکھے، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ اس میں ادھر کوئی گالم گلوچ تو ہو نہیں رہی. آپ آتے ہیں ہمارے پاس کافی عرصے سے گجر بادشاہ، کیوں؟ تو یہ بات ہو رہی تھی. تو اب اس بارے میں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. ہاں. تو وہ اگر کہتے ہیں میں ان کو مرزا صاحب مانتا ہوں تو آپ ان کو تشریف والے مرزا صاحب بھی مانتے ہیں، وہ امام مہدی مسیح نہیں مانتے ہیں.
जैसे जैसे आप वो कह रहे हैं हम साबित कर दें तो मैं मान लूंगा। तो वो तो हमने ये सामने लगाए हुए रूहानी खजान जल्द 18 है गलती का जाला। ये उनका और आपका मौकफ है। मेरा मौकफ ये है कि जैसे कोई कहता है वैसे ही माननी पड़ेगी। ला इकराह फी दीन है, दीन इस्लाम में जबर नहीं है। दूसरी बात हाँ। यह है कि ईसाई भी पहले ऐसे ही करते थे। वो क्या नहीं करते थे? नहीं, जैसे जैसे कौन, हुसैनी साहब जैसे कहेंगे कि मिर्जा साहब जैसे कहेंगे? मुझे जरा उर्दू में पश्तून हूँ, मुझे उर्दू सही समझ नहीं आती। जिस बंदे को आप पूछते हैं कि आपका क्या अकीदा है, जैसे वो तो कहता है ये हुसैन साहब, ये जो हुसैन मुन्निस साहब हैं, ये कहेंगे कि मिर्जा साहब ये हैं। मुझे क्या पता, वो जो कहते हैं वो मान लें उनकी बात। तो जो मिर्जा साहब ने कहा वो नहीं मानेंगे? पता क्या है, किसी को ये मजबूर मत किया जाए कि लानते डालो। ईसाई भी नहीं कहते नहीं, हैं, लानते की बात नहीं, ये सामने हवाला लगा है वो भी कि कहते हैं मैं रसूल भी हूँ और नहीं नबी भी गुज्जर हूँ, साहब, ये नबी देखिए भेजा फिर गया आप हूँ तो और आपकी खुदा अपनी से। बात में तजाद आ गया। अभी आपने कहा कि सामने वाले से पूछो आप क्या है, वो जो बताए वो मान लें। तो अगर सामने वाला कहते जी मैं मिर्जा साहब को लानती मानता हूँ, फिर आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। इसी पे तो मैं बात कर रहा हूँ। अब सुने, हाँ ना, तो फिर आप फिर इस तरह से स्टेटमेंट ना दें कि जो सामने वाला कहे वो मान लो, फिर ये बिना स्टेटमेंट वजह गलत है। बिना वजह जब किसी पर लान डालता है कोई बंदा, वो लान तो वापस उस पर आती है। इसका आपका क्या ख्याल है? हाँ, तो यही इसीलिए तो हम कहते हैं मिर्जा साहब को, क्योंकि उन्होंने 1000 बार लानते और पता नहीं कितनी बार लिख लिख के डाली हुई है लोगों पे। वो फिर वो इसमें हम दलील, क्या गलत कहते हैं? उनकी बात दलील से है। अब सुन लें, हाँ, अब उनकी बात दलील से है, तो जब दलील से को लानत डाले फिर ठीक है। फिर आपकी वो स्टेटमेंट किधर गई कि जो सामने वाला बात करे वही मान लेनी चाहिए? ठीक है। आपका मैसेज मैंने पहले भी सुना है। आपकी वजह से मैं ऊपर आया हूँ, पता है आपको? आपकी वजह से मैं ऊपर आया नहीं ठीक है, लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो तो गलत हो गई ना। फिर ये तो म्यार नहीं ना ज़िया बनता भाई, कि जो सामने वाला कहे वो मान लो, ये तो नहीं ना बात बनती। ज़िया भाई आपको पता है गुज्जर साहब जो है ये व्हाट्सएप ग्रुपों में तबलीग करना पसंद करते हैं, सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पे आए हैं टिकटॉक। नहीं उत्थों भी ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਿੱਲਰ ਖੁੱਲਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। और नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ WhatsApp ਤਬਲੀਗ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, मैंने समझे। हाँ, ठीक गल जी जी, गुजर साहब करे बात आप। माना नहीं चाहिए। अच्छा, गल इस तरह है कि वो सबसे पहले यूरोप में यहाँ पर ये कहा गया कि आपकी आवाज सही नहीं आ रही गुजर साहब, थोड़ा उलझो। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी मेरी सही है। आवाज मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ भी लोग ईसाई भी पहले ऐसे थे, इंतहाई तंग नज़र, लानते डालते थे, यही करते थे। फिर मार्टिन लूथर के ज़माने में ये ऐसा दौर आया कि कहा कि इंसानियत पैदा करो, दूसरे मजहब पर हमला करने की बजाय बेहतर पहले इन्होंने इंसानी पैदा की। इन्होंने मजहब को पीछे रख कर दिया, पहले इंसानी पैदा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इंसानियत है सबसे पहले। और नहीं है भाई, झूठ बोल रहे हैं आप। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप झूठ मत बांधें, और बाकी जो भी आपने करना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कहीं नहीं फरमाई। और दूसरी बात ये है कि आप एक बात अभी बयान करते हैं और जब मैं आपसे उसी पे काउंटर क्वेश्चन करता हूं, आप कहते हैं उनकी बात दलील के साथ है। आपने कहा जी ये लोगों को इनका ये रवैया बन गया था, लोगों को बुरा भला करना, उनको क्रिटिसाइज करना, ये काम मिर्जा साहब ने किया। मेरी बात अब मिर्जा साहब की बारी आएगी तो आप कहेंगे उनकी बात दलील के साथ है। तो भाई मिर्जा साहब दलील के साथ गालियां दे सकते हैं, बुरा भला लोगों को कह सकते हैं, तो दूसरा बंदा क्या, उनको क्या है, वो खराब को आंख कान खराब है उनका भी, वो आपको बंदे पसंद नहीं है, वो नहीं कर सकते। फिर सबको राइट होना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरी बात पूरी हो रही है, फिर आप कर रहे हैं, बारी बारी भी कर रहे जी हैं। चलो ठीक है जी, करें। हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हम नारा लगाते रहते हैं और बार बार दोहराते हैं, आप रहमतुल आलमीन है, दुनिया के लिए रहमत है। रहमत के अंदर इंसानियत भी शामिल है। और कहीं नहीं लिखा कुरान मजीद में या हदीसों में कि इंसानियत का मौजू नहीं है इस्लाम के साथ वाबस्ता, कहीं नहीं लिखा है। कोई ऐसी दलील नहीं मिलती जैसे पता चले कि इंसानी छोड़कर कुछ और आगे रखी चीज़। सबसे पहले तरजीह इंसान को दी है, इंसानियत को दी गई है। तो इसी बेस पर हम किसी से नफर नहीं कर सकते। आज अच्छा जो दुनिया गुज्जर साहब दिखाएं, मैंने आपको पहले भी मना किया था, आप फिर दिखाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ ये बात बयान फरमाई है कि सबसे पहले इंसानियत है। ये रहमतुल बताएं। आलमीन का क्या मतलब है? रहमत अल्लाह आलमीन का मतलब है सबसे पहले इंसानियत है। रहमतुल आलमीन का तर्जुमा क्या हाँ मतलब ठीक है, दिखा दें कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि रहमत अल्लाह आलमीन का मतलब है सबसे पहले इंसानियत, दिखाएं। है? इंसानियत के अंदर नहीं आती है, हाँ जी ये इंसानियत मुकम्मल कॉन्सेप्ट नहीं है। गुज्जर साहब, अगर आपकी बात ही लेके मैंने बैठ जाना होता कान बंद करके, मैं सवाल ही क्यों करता आपसे? आपने जो स्टेटमेंट दी है उसका सबूत आपसे मांगा है, तो वो आप दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक दिखाएं, फरमान दिखाएं। अगर नहीं दिखा सकते तो आप उन पर झूठ बांध रहे हैं।
अगली बात आपने रहमत लिल आलमीन की अगर रहमत लिल आलमीन का मतलब ये है कि सबसे पहले इंसानियत है, तो आप दिखा दें दुनिया की कौन सी डिक्शनरी है जिसमें ये मानी लिखा हुआ है। अच्छा चले फिर ऐसे करते हैं, मैं अपनी बात पे रुक जाता हूँ, आप मुझे जवाब दे दें। क्या नहीं, मैंने जवाब नहीं देना, मेरी तरफ से चिट्टा जवाब है आपको। जब तक आप अपने इन 2 गलत बयानियों और एक झूठ का जवाब नहीं देते, मेरी तरफ से चिट्टा जवाब है, मैंने नहीं जवाब देना आपको। मतलब गुज्जर साहब देखें, गलत बयानी आप करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ आप बांधें, हम उस पर क्वेश्चन करें तो आप कहते हैं अच्छा नहीं मेरी बात का जवाब दें। भाई हम क्यों दें? एक तरफ मुझसे सवाल कर रहे हैं, जब मैंने काउंटर सवाल करने की कोशिश की ताकि आपको समझ आ जाए। नहीं, काउंटर सवाल तब करें आप जब पहले आप इन 2 स्टेटमेंट्स का प्रूव करें इनको। आप मैंने उस वक्त रोका था कि ये आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात मंसूब ना करें, उन्होंने ऐसी बात नहीं फरमाई, आप नहीं बाज आए, फिर अगली तकरीर में आप वही बात करने लग गए, तो आप सबूत देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसके खिलाफ थे जी नबी की वसल्लम ने इंसानी से इनकार किया हुआ। आप मैंने कब कहा? मैंने ये नहीं कहा, अपनी स्टेटमेंट पे रहे। इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानियत का दर्स दिया, सबक दिया, लोगों को इंसानियत सिखाई, बताई कि क्या होती है इंसानियत, ठीक है, कोई डाउट नहीं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सबसे पहले इंसानियत है, ये आपने साबित करना है। इस पे क्वेश्चन है मेरा। हाँ, इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी। यही पर है, अगर इंसानियत ही नहीं इस्लाम में साबित हो रही, अगर मगर नहीं, अगर मगर टगर शगर मगर नहीं, आप प्रूफ अपनी बात का दें, फिर बाद में समझाएं हमें। डॉक्टर साहब आपके मुताबिक नहीं साबित हो रही। मैंने बता दिया कि आप मुझे इसका प्रूफ दे दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ ये बात बयान फरमाई। दुनिया यही जानना चाहती है, दुनिया यही जानना चाहती है कि अगर आप नहीं साबित कर सकते। देखें गुज्जर साहब, फिर अगर मगर शगर ये छोड़ दें बात, तब तक आप यहाँ बैठना इसके बाद आपका फजूल है, जब तक आप अपनी इस बात का सबूत नहीं देते जो झूठ आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया। कुरान आगे नहीं बात होगी। कुरान में क्या है इसके बारे में कोई 2 रास्ते हैं, या माफी मांग लें कि मेरे से गलती हो गई है, या मुझे साबित कर दे, बस। मैं माफी मांग लूं कि इंसानियत है ही नहीं इस्लाम में, मैं ये नहीं कहा, मैं पहले आपको बात एक बार की हो 10 बार एक ही बात है। मैंने नहीं कहा इस्लाम में इंसानियत नहीं है, मैंने नहीं कहा इस्लाम इंसानियत का दर्स नहीं देता, मैंने नहीं कहा इस्लाम इंसानियत नहीं सिखाता। आपकी स्टेटमेंट ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले इंसानियत है। इस पे मेरा क्वेश्चन है, इस पे फोकस करें, सबूत दे दे या माजरत कर ले। माजरत कर लेंगे जब बनी तो फिर पहले रुक जाएं। हाँ ठीक है, चले फिर प्रूव कर दें। नबी भी इंसानों में से बनते हैं और ये सवाल नहीं है, नहीं ये सवाल नहीं, सवाल ये है कि कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले इंसानियत है। भाई है इंसानियत, इंसानियत आपके मुताबिक ना, आप इस बात को आप खुद कहते हैं कि मेरे नजदीक, मैं पूछता ही ना आपसे, आपने मंसूब किया इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। क्या वहशत है पहले फिर? नहीं वो नहीं है, आप इस बात को प्रूव करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई है या वहशत है। नहीं मैंने ये नहीं कहा, इधर उधर ना जाए, अपनी बात का प्रूफ दें पहले, फिर आगे पीछे जाएं। तो इंसानियत पे रहूंगा। ओ यार वो रहे, आपने मना कब किया मैंने? लेकिन जो बात आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की है उसका सबूत दे दें। मैं तो कहता हूं ये बुनियादी इसी चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आखिरी ज़माना में ऐसे ऐसे कज़ाब और दजाल पैदा होंगे जो तुम्हें ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएंगे जो तुम्हारे बाप दादा ने ना सुनी होंगी। खबरदार उनके पीछे मत लगना, कहीं तुम्हें गुमराह करके फितने में ना डाल दें। तो आप मुझे भाई इसका सबूत दें ताकि मुझे समझ आए कि आप वाकई हदीस बयान कर रहे हैं या फितने में डाल रहे हैं। नहीं, नबी के वसल्लम ने ये भी फरमाया ना कि ऐसे ऐसे कज़ाब पैदा होंगे जो रहमतुल दुनिया में रहमतुल आलमीन के बारे में वजाहत की जाएगी, उसके भी खिलाफ बोलेगी, इंसान के बारे में की। ये दिखा दे नंबर 2, झूठ नंबर 2, फिर रसूलुल्लाह पे झूठ नंबर 2 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे। चले जी 2 हो गए। दिखाए कौन सी हदीस शरीफ है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि ऐसे ऐसे कज़ाब और दजाल पैदा होंगे जिनके सामने कहा जाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और वो इसकी मुखालफत करेंगे और उनके उलमा आसमान की बातरी महलूक। नहीं 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 नहीं, ये जो बात आपने पहले 2 झूठ बोले, इसका सबूत 2 हो गए। लाए जी, यही दूसरा है ना,
दूसरा जो आपने अभी बयान किया कि रहमतुल्लिल आलमीन जब कहा जाएगा तो वो उसकी मुखालफत करेंगे, ये बताएंगे ये कहाँ पे है फरमान? ये यही फरमान है कि वो उनके उलमा दिखाएं जी हदीस, दिखाएं कौन सी है, हैं दिखाएं कौन सी हदीस है। सही हाँ जी, ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਟਾਊਨ ਹੋਣਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ- ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜੀ 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 ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ को बताओ यार, उनको सबूत ਦਿਓ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸਹਬਿਹਿ ਵਬਾਰਿਕ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਡਟ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸਲਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਾਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਪੈਰੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰੋਕ ਲੈਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਫ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦਾ ਨਾਮ 1000 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਐ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਓਏ ਯਾਰ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਭੀਖ ਚਲੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੀ ਗਈ। ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਨਾਦਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਦਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਨਾਦਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਨਾਦਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਬੈਠਾ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਾਦਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਨਾਦਰ ਲਾਈਵ 4 5 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਾ ਭਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਜਲਦੀ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਲਿੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣੇ। ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਲੈਣਗੇ।
कि लाना डाले, हमने हाँ? बोला साहब का लाना डाले। थोड़े बताएं गुजर ये हदीस है ज़खीरा हदीस में कहाँ पर मिलेगी ये रिवायत जो मैं तो लंत पादा लानत सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि एक मजाक है कि हर वक्त हर बंदे पर डाली जाए। वो तो मिर्जा साहब का दावा है कि नबी का है, उनका दावा है कि मैं इस वक्त दुनिया की जो बिगड़ी कौमें हैं उनको संवारने के लिए आया हूँ। उनकी जुम्मे में कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, हजूर से उनके बारे में खुशखबरियाँ सुनाई हैं, वो अलग मामला है। लेकिन मैं आप पे ऊपर डालना शुरू कर दूँ बिना लोगों को वजह। बिगड़े हुए को ठीक करने के लिए हदीसों के ऊपर तरोड़ मरोड़ कर दो, हदीस में ऐसे अल्फाज ऐड कर दो जो मौजूद ही नहीं है। ये जायज़ है लोगों की इस्लाह के लिए? नहीं तो फिर बंदे तू ला देते चलेगी यार हमारू वापस समझ आ रहे मुझे डाउन होते याद रहा 5-10 लाख की बात करो। यौमल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा कि ईसा इब्न मरियम की मौत से पहले अहले किताब Ahora sea como se le mete al fan. मेरा सोच मना अच्छा यार एक सारियां गल्लां ना इकट्ठियां शुरू हो गईਆਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਫੈਦੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕਿਓ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਕ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਨਾਦਰ ਲਾਈਵ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਬਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ? नीचे बैठा हुआ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋ ਬਰਾਡ ਹੈਲੋ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸਾਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਬਰਾੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਦਰ बुला रहे हैं। चल रही थी ये विराट 70 पे चल रही थी, इनका दज्जल होता है ये बेगैरत, इनका यही काम है। ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਈ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ। ਮੁੰਡਾ ਹੁਣੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾਈ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ KFC। ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਮਲੰਗਾ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਨਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ भी नहीं कर रहे। उसको छोड़े यार, आप लोग अगर हुसैन मोन्ना साहब है ना, हुसैन मोन्ना साहब उनको वापस बुलाएं। उनको आज लाहौरी मरजई से आज उनको खिलाफत पार्टी में शामिल करना है। समीर मलिक साहब आपको जरा नीचे उतारो। यकीन करें मैंने 15 वाले रेडी किए हुए उनके लिए, एक एक करके मैंने उनसे पढ़वाना है कि इसमें दावा नबूवत है या नहीं है। वो जो कह के नहीं है मैं अगला लगा दूंगा, मेरा कोई उनसे बहसने का मौक़िफ़ नहीं है। मैंने हवाले उनको दिखाई जाने है कि इसमें दावा नबूवत मिर्ज़ा साहब का है या नहीं। अगर वो कहेंगे इसमें नहीं है, मैं कोई उनसे बहस नहीं करूँगा, अगला वाला लगा दूंगा। बुलाएं उनको वापस। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਐਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿhi ਵਸਹਬੀ ਵਬਾਰਿਕ ਵਸਲਮ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਜਾਓ। कौन सा कादियानी है जो अल्लाह के नबी की तरफ झूठ मंसूब नहीं करता? ये काम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने किया है, नूरुद्दीन बैरवी ने किया है, बशीरुद्दीन महमूद ने किया है, मिर्ज़ा नासर ने किया है, मिर्ज़ा ताहर ने किया है। आज का खलीफा मसरूर भी
अगर आप उसके जुम्मे के खुतबे सुने हो, बड़ी झूठी बातें हदीस में की तरह मंसूब करता है। और कादियानियों को तो कोई मतलब हदीस का पता ही नहीं है, वो अपने मुंह से कोई बात निकालते हैं, उसको कहते हैं ये अल्लाह के नबी की हदीस है। इतने लानती लोग हैं, इनको डर ही नहीं लगता अल्लाह से। समीर मलिक भाई आ जाते हैं। ज़िया भाई मुझे एक बात बताएं, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ। कल रात को आपकी हमारी बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि मैं अपनी पग आप सब के कदमों में रख देता हूँ, ये मामला ख़त्म करें। आपने ये जो 25 बंदों के कदमों में पग रखनी है, आप 25 की बजाय एक के कदमों में पग क्यों नहीं रखते? इसका कोई जवाब है ज़िया रसूल भाई? जो एक बंदा है जिसको सब मुसलमानों से प्रॉब्लम है, आप उसके कदमों में जाके अपनी वही मेरी पग क्यों नहीं रखते, ये बताएं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो कोई ऐसे मसाइल है ना, या वो फैदी भाई छोड़ें जी इनको, कोई किसी हल का नहीं नाम होता। तो नहीं लिया ना यार, नहीं मैं नहीं कोई वैसे नाम कह रहा वगैरह हूँ, तो नहीं नहीं दे रहा नहीं ना। फैदी भाई वो नहीं मैं वैसे कह रहा। मुझे ज़िया भाई ने रात नहीं को गुजारिश की थी और बड़े दर्दमंदाना और इखलाक के ज़िया साथ और देखें, ज़िया इस्लामी भाई की हमीयत के तहत उन्होंने गुजारिश की थी। मैं ज़िया उनको भाई मशवरा ने देता हूँ, आपने 25 जगहों पे जो जाके अपनी पग रखनी है, उन 25 की बजाय एक के कदमों में रख दें, उसको समझा लें। या तो आप कह दें वो बंदा मेरी बात नहीं समझता ज़िया भाई, या तो कह लें कि मैं उसको समझाने से मजबूर हूँ, तो फिर हमें समझ आ जाए। ये क्या तुक हुई कि 25 बंदों के कदमों में जाके आप पग रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो 25 बंदों की मुखालफत करने वाला एक है, जो कि प्रॉब्लम की जड़ है, जो कि इस वक्त रूट कॉज है, उसको आप जाके वो पग नहीं रख रहे। इसके बारे में क्या आपकी कहेंगे राय है ज़िया भाई? मेरा ख्याल है, मैं ये गुजारिश करूँगा ज़िया भाई की माशाल्लाह जो कोशिशें हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला ज़िया भाई को कामयाब करे, इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। इससे पहले भी ज़िया भाई ने बड़ी दफ़ा कोशिशें की हैं, तो बाकी इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है फैदी भाई अगर कोई बातें करने मैं वाले तो कह रहा हूँ भाई, मैंने तो इकरार आपस किया है, में उन्होंने आपस में नहीं वो आपस में नहीं, वो व्हाट्सएप पे करें, इससे ज़्यादा के व्हाट्सएप। तहत समझ के तहत सबको ये मशवरा दिया है। मैं उनके मशवरे की कदर अब करता अगर हूँ। फैदी भाई मेरी बात लेकिन सुने, अगर अभी मैं एक काम जो अब फैदी आपने भाई 25 ठीक लोगों है, के साथ जाके अब आपने करना जो है, बात वो 25 की नहीं बजाय नहीं एक से नहीं क्यों एक नहीं मिनट करते? फैदी भाई आपने जो बात की है ना, बात सुने, अभी आपकी ये पब्लिकली ये बात करने ने ना, अगर वो आपकी बात बड़ी अच्छी बात है, तो इसका कोई पॉजिटिव असर था ना, वो ख़त्म हो गया क्योंकि आपने पब्लिकली ऐसे बात कर दी। अगर यही बात आप आपको ये पब्लिकली ज़िया बातें भाई हो रही को थी, बात सुने ना, जो बातें बात रात तो को सुने। पब्लिकली नहीं हो नहीं रही अभी थी, नहीं नहीं और अभी अगली बात जो हमारे ऊपर वो मैंने इसी फतावा जात लगते हैं वो पब्लिकली लगते हैं, साहिल भाई को हाँ प्राइवेट ठीक में है नहीं लगते। जी, ठीक है चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर भी लगते हैं, आपको पता है हमारे ऊपर भी लगते हैं, कोई बात नहीं फैदी भाई, कोई बात नहीं आती। पर अगर हमारे और ये साहिल भाई गलत बात है अगर ना, इसी हमारी तरह आप लोग ना बात सुनो, इसी नहीं साहिल भाई सिरके, मेरी माजरत के साथ मैं आपको कथा कलामी की माफ़ी, आप लोगों के इसी रवैये और आप लोगों के इसी रविश ने उस शख्स का दिमाग खराब किया हुआ है। नहीं यार फैदी भाई बात खुदा सुनो, पाक please, की अभी कसम, मैं बात सुनो, वो नहीं समझता यार है मैं फैदी जो भाई, भी please, करूंगा, नहीं मुसलमान फैदी भाई, जो है ना please, उनके फैदी उसने भाई, एक किस्म please, का stop। अपने पास हाईजैक फैदी करके रखा भाई हुआ एक है। मिनट, फैदी भाई लेकिन मुझे एक मुसलमान मिनट तो फतवे मुझे बात के बताएं, कॉज फैदी के भाई लिए एक मिनट जरा रुके, चुप फैदी कर भाई जरा देंगे। एक मिनट रुके, ये नहीं फतवे छोड़े इस वोट बात के को, कॉज के नहीं लिए छोड़े, अपनी मुंह ज़ुबान बंद नहीं कर एक मिनट सकता। छोड़े, एक मिनट फैजी भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कुछ भी है, एक बात सुने, मैं अपने आप को आपसे आगे कभी भी नहीं, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं अपने आप को आपसे आगे समझता हूँ, मैं झूठ बोलूँगा। अगर मैं अपने आप को कम अज़ कम, मैं अपने आप को आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जी मैं अपने सॉरी, आप मैं को नहीं आपसे था, ज़्यादा मुझे किसने इंपॉर्टेंस बुलाया नहीं था? देता। नहीं ज़िया भाई एक मिनट रुके, वो एक मिनट रुक जाए। अच्छा फैजी भाई, अगर मुझे किसी और किसी लाइफ ने पे बात आपसे सुने, ये बात जिधर रात को हम कर रहे थे ना मौजूद, हाँ, ठीक है, चलिए। मैं साहिल भाई मैं समझ गया, मैं माफी चाहता ठीक हूँ हो। जहाँ पर नहीं, रात नहीं, को कोई बात गुफ्तगू हो रही थी ना, मैं वहीं हाँ, पर ज़िया भाई से पूछूंगा। ठीक होगा, थैंक यू वेरी मच फैजी भाई, आई लव यू। देखो ना ज़िया भाई रोला पाया तो ज़िया भाई भी छोड़ गए। चलो जी, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਜਾਰੀ ਕਰੋ फैजी भाई,
ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਫੈਜ਼ੀ ਭਾਈ। साहिल भाई ज़रा दोबारा बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा आप जो अपनी तहकीक पेश करने लगे थे ना वो जारी करें, पेश करें। वो अब उनको बुलाए ना मोनस साहब को, तो फिर मैं वो पता नहीं हवाले सारे भेजिए इसको खान को, खान अभी लगाई जाएगा एक एक करके, तो मैं पढ़ी जाऊंगा। मैं असल में एयरपोर्ट पे